خوشیوں کا مژدہ ہے مشتاق تیرا صحرا، کس کس کی تمنا ہے مشتاق تیرا صحرا، سنت ہے نبی کی جو ادا آج ہوئی ہے، اللہ کا تحفہ ہے مشتاق تیرا صحرا، ماں باپ بہن بھائی چچا اور چچی کے ارمانوں کا غنچہ ہے مشتاق تیرا صحرا، اشعار میں پھولوں کی طرح لفظ پرو کر، اشعار میں پھولوں کی طرح لفظ پرو کر، صادق نے یوں لکھا ہے مشتاق تیرا صحرا۔ السلام علیکم، میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ بیٹے کی شادی کے ارمان ہر ماں باپ کو ہوتے ہیں، اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو خاص طور پر ماں کو یہ انتظار رہتا ہے کہ کب میں اس کے لیے ایک چاند سی دلہن تلاش کروں۔ اسی طرح سے بہن جو ہے وہ بھی اپنی بھابھی کے لیے منتظر رہتی ہے، اور پھر بیٹے کے لیے ایک لڑکی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو لڑکے کے ماں باپ ہیں، اور خاص طور پر ماں ہے اور بہنیں وغیرہ جو ہیں، اور بذات خود لڑکا، ان کی یہ خواہش رہتی ہے، یہ تمنا رہتی ہے کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہو وہ بہت خوبصورت ہو، بڑے گھر کی ہو، تعلیم یافتہ ہو، اور گھر کے کام کاج میں ماہر ہو۔ یہ 4 کرائٹیریا کہیں، معیار کہیں یا شرائط کہیں، اس کے بنیاد پر لڑکی کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ خوبصورتی کی جو بات ہے تو میں اس کے تعلق سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ وہ لڑکا جو اپنے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہے، یا وہ ماں یا بہن کہ جو اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہیں، وہ صرف اتنا سوچیں کہ وہ جو لڑکے کی بہن ہے وہ جتنی خوبصورت ہے، کیا وہ اتنی ہی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہے یا اس سے زیادہ۔ دوسری بات، بڑے گھر کی بیٹی کی بات۔ پریم چند کی ایک کہانی تھی، بڑے گھر کی بیٹی، اور اس کہانی میں جو بڑے گھر کی بیٹی کا کیریکٹر تھا، اگر ہم آج سماج میں اس کردار کو تلاش کریں گے تو ملنا بہت مشکل ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مڈل کلاس فیملی ہے ان کا ایک ہڈن ایجنڈا بھی اس میں رہتا ہے، بڑے گھر کی لڑکی کی تلاش میں جہیز مانگا نہیں جاتا، لیکن وہ ایسے گھر کی لڑکی کو لانا چاہتے ہیں جو اپنے ساتھ ڈھیر سارا جہیز لے کر آئے، اور نہ صرف جہیز بلکہ وراثت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے۔ لڑکی جہیز لے کر بھی آتی ہے، اور ایک ہی مہینے کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکی اپنے ساتھ اے سی لے کر آئی ہے، اور اسے اے سی کی عادت ہے، اور جب ایک مہینے کے بعد لائٹ کا بل آتا ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے لڑکی کا رہن سہن ہے، جس طرح سے اس کی پرورش ہوئی ہے، وہ آرام اور آسائش جب اس کو اپنے سسرال میں مہیا نہیں ہوتے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی رکھی جاتی ہے کہ ایسی لڑکی ہو
जो घर का तमाम काम काज संभाल ले। और कभी कभी तो वो इस तरह की तलाश करते हैं और इस तरह के सवाल पूछते हैं जब लड़की की तलाश में निकलते हैं तब, कि उनके सवालों से ऐसा लगता है कि वो अपने लड़के के लिए बहू ढूंढने गए हैं या किसी काम वाली की तलाश में निकले हैं। वाकई में अपने बेटे के लिए लड़की का इंतखाब बड़ी संजीदगी से करना चाहिए। जिस लड़की का इंतखाब आप कर रहे हैं उस लड़की में इतनी समझदारी होनी चाहिए और वो तालीम याफ्ता होनी चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले बरसों में उसके हाथ में वो बागडोर आने वाली है जो बागडोर आज लड़के की माँ के हाथों में है, या उसे वो ज़िम्मेदारी अदा करनी है जो आज लड़के की माँ अदा कर रही है। और उससे भी अहम बात कि अपने लड़के के लिए जिस लड़की का आप इंतखाब कर रहे हैं उस लड़की की गोद में आपकी नई नस्ल परवरिश पाने वाली है। आपकी आने वाली नस्ल उस लड़की के हाथों में परवान चढ़ने वाली है और वो लड़की ऐसी तालीम याफ्ता और समझदार हो कि एक महफूज हाथों में आपकी नई नस्ल परवान चढ़े। ये एक बहुत अहम बात है और एक अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आम तौर पर जब हम बेटे के लिए लड़की की तलाश करते हैं तो उस पर हम तवज्जो नहीं देते। दूसरी बात जिस पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है लड़की की अखलाक। लड़की का बाअखलाक होना ज़रूरी है, और अगर लड़की उसकी परवरिश इस तरह से हुई है, वो बाअखलाक है, तो उस लड़की में सब्र तहम्मुल भी होगा, क़ुव्वत बर्दाश्त भी होगी, और वो रिश्तों की अहमियत भी समझेगी और रिश्तों को निभाएगी भी। मौजूदा ज़माने में वैल्यूज़ चेंज हुई हैं और अब तमाम लोग, घर के जितने भी अफराद हैं वो तमाम लोग मिलकर घर का कामकाज जो है वो ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से माँ बनने का हक़ अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत को दिया है, इसी तरह से औरत के मिजाज में और उसके हाथों में वो नफासत भी दी है कि वो जितनी बहुस्न खूबी घर के कामकाज को अंजाम दे सकती है और कोई उस काम को इतनी खुश असलूबी से अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए ये लड़की पर ज़िम्मेदारी ज़रूर आयद होगी कि उसे अपने घर का कामकाज संभालना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि उसको नौकरानी समझा जाए। इस बात का भी घर वालों को ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं जो लड़की के वालिदैन हैं उनसे मैं ख़ास तौर पर गुजारिश करना चाहूँगी कि लड़की की परवरिश में वो इस बात का ख्याल रखें कि सबसे पहले तो लड़की को इस बात की समझ दी जाए कि उसे एक पराए घर जाना है, नए माहौल में जाना है और नए लोगों के साथ उसे एडजस्ट होना है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि लड़की की तरबियत जो है उसमें इस बात को भी शामिल किया जाए कि अगर उस पर जुल्म होता है या कोई उस पर हाथ उठाता है तो वो हाथ पकड़ने की हिम्मत और उस हाथ को पकड़ने का हौसला भी उस लड़की में होना चाहिए। जो लड़कियां हैं उन्हें भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गुरूर से, तकब्बुर से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अब वो गुरूर
चाहे खूबसूरती का हो, पैसे का हो, स्टेटस का हो या तालीम का हो। लेकिन गुरूर जो है वो इंसानी रिश्ते कायम करने में हमेशा रुकावट पैदा करता है। गुरूर की वजह से रिश्तों के दरमियान मोहब्बत कायम नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा लड़कियों को तकब्बुर से, गुरूर से दूर रहना चाहिए। लड़का और लड़की के दरमियान अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की ख्वाहिशों का ख्याल रखना, एक दूसरे को इज़्ज़त देना और एक दूसरे की जो कमी है उसको नज़रअंदाज करना, ये बुनियाद है एक कामयाब और मज़बूत अज़दवाजी ज़िंदगी की, मैरिड लाइफ की। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक अच्छी बात को लेकर। अल्लाह हाफिज़।